all the media friends. This press conference of All Arunachal Pradesh Students Union APSU is basically on 2 points. That's the COVID-19 pandemic and about the SSA teacher recruitment fiasco. At the very outset, we on behalf of APSU and on behalf of the people of Itanagar Capital Region welcomes the state government decision to go for 1 week lockdown. This has been one of the persistent requests and demand of the union to the government that government should enforce such a lockdown after the aftermath of growing spike of the positive cases in the capital region. And today, the respected Chief Secretary of the state has announced that capital will be locked down for 1 week. We welcome that decision by the state government. And the first part is the COVID-19 issues. There are certain issues that we have been requesting the government from time to time to contend this one. And one of the major, this one has been accepted by going to lockdown. But there are still some issues which we are going to place through this press conference. The first point is the objection to the government order for allowing public offending of the religious places of worship. Another point is temporary restriction on outsider returnees coming into the state. Retesting of all primary and secondary contacts of the 2 families of COVID-19 positive workers. Mandatory sanitization testing of goods vehicles entering the state. The state government should also impress upon the appropriate authorities of the central paramilitary forces like NDRA, BRO and other central organizations that are working in the state. And we have seen yesterday that the district administration had already issued an order on that. So these are the issues on the COVID-19 overall of the state and of the capital region. And the second, that will be the nitty-gritties will be briefed by the chairman of the issue, Majataku. And the second part is regarding the requirement process of Sarva Shiksha Abhiyan. The objection, the demands, the request, it's already in the public domain. Last time the question was arised here. And we have at that time also categorically told that because at that time we didn't know exactly that kind of cabinet decision exists. The question that was put up here only opened up our eyes, and after that we had a meeting with different officials. So yesterday and on 2nd July we have submitted a memorandum to the 2nd July we have submitted a memorandum to the Honorable Education Minister on this same issue regarding this one, and we have requested him that some clauses of the cabinet decision is defective, that inclusion of PRI members and 2 respected people of the district, that has to be defined elaborately. So we have rejected that, and we have returned to the Honorable Minister. And yesterday we got a clarification from the Secretary Education, and we have gone through her this one clarification, and we have also put in our this one objection to that, because what we saw in her clarification, she has said that 20% mark, all the this one marking system is based on the earlier examinations of like class 10, 12 and the college level, and also only 20% mark of percentage is given to the interview board, which will be headed by the Deputy Commissioner. Under him, DDSC will be the member secretary, 1 PRI representative and 2 public leaders. So we have once again expressed our this one grievances to her that PRI representative and the 2 respected people of the district should be immediately striked off, and in that place subject experts should be included. So that's a very small demand.
But these are demands that will have a long ramification in the long run for the healthy growth of the education sector in the state. तो इसके बाद जो आगे का जो कोविड का जो नीति गति से इसको हमारा वाइस प्रेसिडेंट एक्सप्लेन करेगा. थैंक यू. Yesterday we had a meeting regarding the COVID-19, the recent development of COVID-19 there at Narlagan. Today we submitted representation to the state governments, Honorable Chief Minister, Council of Minister, Chief Secretary. We have few objection in the various points related to this. APSU number 1 point, objection to the government order for allowing opening of religious place of worship. जितने भी जो religious जो place है, जो religious institution है, जो पहले भी आप लोग ने सुना, आपसे हमेशा ऑब्जेक्शन डाला, उसका कारण से कुछ दिन बंद रहा, तो स्टिल वी फील दैट कि उस ऑर्डर को कंटिन्यू करना है. द रीजन इज दैट ये जो हम लोग ऑलरेडी आई विटनेस है इन दिस रिगार्ड्स, एवरीवन इज वेल अवेयर रिगार्डिंग द तबलीगी जमात जो दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ. तो वी फील दैट डे बाय डे जो हमारा प्रदेश में आज अरुणाचल प्रदेश में कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ रहा है, तो इस समय में उसका कारण स्कूल बंद है, जितने भी स्कूल्स है बंद है. फिर स्कूल वगैरह बंद करके बाकी सब बंद होने के बाद फिर रिलीजियस प्लेस ही क्यों खोलेगा. Therefore, we submitted representation to the state governments and we appeal to the various believers, though it may be like Christian, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Donji Polo, जितने भी रिलीजियस जो बिलीवर्स है और उसके लीडर्स है, मैं आपसू की ओर से उस सभी को भी मैं तहे दिल से अनुरोध करना चाहूँगा. अगर इस समय में हम लोग रिलीजियस प्लेस खोलने से कल को कम्युनिटी स्प्रेड का काफ़ी चांसेस है. देयरफॉर मैं सभी को भी अपील करता हूँ, ये समय में हम लोग अपना जान को बचाने के लिए सोचना है, कम्युनिटी स्प्रेड को रुकाने के लिए सोचना है. एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट टेम्प्रोरी रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटसाइडर रिटर्नीज कमिंग टू द स्टेट्स. कुछ महीना पहले जितना जो आया, बहुत लोग ने हमें सवाल उठाया, आपने आने दिया, हम लोग को बहुत लोग ने कहा, वी एक्सेप्टेड दैट, लेकिन हम उसको क्लियरिफाई करना चाहेगा आज आप लोग का माध्यम से. हमारा लोग को वहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में हम मरने देने के लिए भी तो छोड़ नहीं सकता है, उसको तो आने तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी था वो किसी का बेटा है, वो किसी का बेटी है, वो किसी का भाई है, किसी का बंधु है, वो अपना ही है. वो यहाँ वापस नहीं आएगा तो वो कहाँ जाएगा. और वहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो बाहर में हो रहा था, आप सब अवेयर है, तो इसलिए हमें आने के लिए मजबूरन हम लोग को सरकार को बात करना पड़ा है कि बाहर का को आने देना है. बट टुडे आज रीजनली स्टेट गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दिया, द 30 जून जो डेडलाइन दिया था फॉर रिटर्नीज. तो ऑलमोस्ट सारा जो है ऑलमोस्ट आ चुका है, जो आना नहीं चाहता वही वहाँ बैठा है. तो देयरफॉर अभी सिचुएशन भी इतना ख़राब है, डे बाय डे या कोविड-19 पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग को सरकार को हम लोग का दरख्वास्त है, जो हम लोग का डिमांड है कि अभी जितने भी है गेट को, इंटर स्टेट गेट को सील करना है. ओनली एसेंशियल कम्युनिटीज़ जो इमरजेंसी केसेस वाला सब उसको रखना है. बाहर का स्टेट से अभी जो रिटर्नीस है उसको फॉर टेम्पोररी पीरियड कुछ जैसे कि 1 महीना जैसे के लिए रुकाना है, सो दैट उस पीरियड में हमारा यहाँ का जो अभी कोविड जो पॉजिटिव है और जो इतना रिटर्निस्ट जो बैठा है, कल को फिर और पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा उसको, ताकि इस 1 मंथ में हम लोग ट्रीटमेंट अच्छा से कर सके और केयर कर सके. तो इसलिए अभी सीधा फिर रिटर्निस्ट लोग और बाहर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो फिर लोड ले नहीं पाएगा. मोर ओवर आप सब मालूम है जो PTC जो बांद्रादेवा क्वारंटाइन सेंटर भी बंद हो चुका है. And regarding the retesting of all primary and secondary contacts of the 2 frontline COVID-19 positive workers, जो हमारा जो 2 frontline जो वर्कर है जो पॉजिटिव हुआ था, तो उसका जो
प्राइमरी कंटेक्स्ट और सेकेंडरी कंटेक्स्ट को जो अभी डिपार्टमेंट से नेगेटिव बोल के दिखा रहा है, तो मैं उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगा, स्पेशली नोडल ऑफिसर उसका टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपसू फील दैट द ओपिनियन द आपसू, हम लोग का ओपिनियन है कि उसमें आप लोग जिस प्रोसेस में आप लोग ने टेस्ट किया वहाँ पे नेगेटिव फॉल्स रिपोर्ट आने का काफ़ी चांसेस है। द रीजन इज दैट, देखिए एज पार्ट द गाइडलाइंस ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस गाइडलाइन में क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, इस गाइडलाइन में क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, नंबर 5 में लिखा है कि एसिम्प्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कंटेक्ट ऑफ कंफर्म केस टू बी टेस्टेड once between day 5 and day 10 of coming into the context। 5 दिन से लेकर 10 दिन का बीच में कंटेक्ट को टेस्ट करना है। बट हमारा जो रिसेंटली जो टेस्ट हुआ आपका 26 को टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया 29 को पॉजिटिव हुआ। उसके बाद में जब 29 को पॉजिटिव हुआ तो 29 से आप लोग काउंटिंग कीजिए जो उसका कंटेक्स्ट था। अभी 29 को एक दिन मानिए, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 4 तारीख। ये जो है अभी देखिए एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द ICMR, ये 4 तारीख से जो टेस्टिंग है वो शुरुआत करना है। बट हमारा लोग ने टेस्ट जो है वो 1 तारीख 2 तारीख में उसका सारा आज तक ऑलमोस्ट रिजल्ट सब आ चुका है, और जो प्राइमरी कंटेस्ट सब नेगेटिव जो अवेयर है, आप सब अवेयर है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वो फॉल्स रिपोर्ट आएगा, आ सकता है। इसलिए देयरफॉर इट्स अपील टू द कंसर्न अथॉरिटी, ये हम लोग का अपील है और डिमांड है कि प्राइमरी जो कंटेक्स्ट है उसको रीटेस्टिंग करना है। उसका बाद रिगार्डिंग द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, उसका ऑलरेडी जो कैपिटल कम्प्लेक्स का डिप्टी कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकला हम लोग वेलकम करते हैं, और उसी तरह ऑर्डर जो है ये सेम जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वो सब कैपिटल में नहीं है, ये इंटायर अरुणाचल में है। तो वी फील दैट कि सारा DC डिप्टी कमिश्नर इस चीज़ में स्ट्रिक्टली देखना है, क्योंकि जो अभी जैसे NDRF का एग्जांपल लीजिए, जो NDRF लोग है यहाँ में वो हम लोग का सेवा करने के लिए आता है, हम लोग वेलकम करते हैं, हम लोग उसका खिलाफ नहीं है। लेकिन आप सोचिए कोई कुछ इंसिडेंट हो जाता है, वो लोग वहाँ से चला जाता है, तो वहाँ से जाने के बाद जब उस पब्लिक एरिया में जब कंटेक्ट में आदमी आएगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो उसी से कम्युनिटी स्प्रेड होने का चांसेस है। इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली विजिलेंस करना है और 14 डेज क्वारंटाइन कंप्लीट करने देना है। उसके बाद में जो मैंडेटरी सैनिटाइजेशन टेस्टिंग ऑफ गुड्स व्हीकल्स जो कैरियर्स है, जितने भी इसेंशियल कम्युनिटीज़ का है जो आता है, तो हम लोग बार बार बोलते आया है कि काफ़ी जगह से, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से, एंट्री चेक गेट से काफ़ी कंप्लेन आता है प्रॉपर सैनिटाइज नहीं कर रहा है। तो हम लोग कंसर्न अथॉरिटी जितना भी स्टेट का जितने भी डिप्टी कमिश्नर है जो इंचार्ज है उसे अपील करता है कि गेट में आप उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करवाइए और ड्राइवर को प्रॉपरली जो टेस्ट है वो करवाना है। एंड इट्स द पेंडेमिक जो आज चल रहा है कोविड-19, इट इज़ रिलेटेड टू द साइंस, ये एक टेक्निकली एक साइंस का पार्ट है। देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट को हम ये भी कहना चाहेगा, काफ़ी जगह से हम लोग ने काफ़ी कोरस्पॉन्डिंग काफ़ी डेमो को बात किया है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, लेकिन बहुत लोग नॉलेज में नहीं है, कुछ कुछ चीज़ में है। उसका कहना है कि आप DC को बात करो, अप्रोप्रिएट नॉलेज उसमें होगा। देयरफॉर मैं गवर्नमेंट को भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो ये मेडिकल टर्म में कुछ कुछ जगह, चाहे वो SOP हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, कहीं ना कहीं जो है सब्जेक्ट जो मैटर है वो मेडिकल डिपार्टमेंट अच्छा से वो कर पाएगा, नॉलेज में होगा। क्योंकि दो इनमें भी IAS, हम IAS को हम कंडेम नहीं कर रहे, APCS को कंडेम नहीं कर रहे, बट ये मेडिकल टर्म में है, तो वो रिक्वायरमेंट किस समय में क्या मेडिसिन का जरूरी होगा, किस समय में क्या इक्विपमेंट्स का जरूरी होगा, वो मेडिकल टर्म में ही है। तो आई फील दैट हम लोग का ये ओपिनियन है कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करते हुए प्रोग्राम पॉलिसी में जितने भी पॉलिसी है डिस्ट्रिक्ट का उसको अटैच में रहना है। उसके बाद में आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके आया
चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में सबमिशन किया, तो फ्रॉम रिलायबल सोर्स आज हमें पता चला है कि आज कैबिनेट का सीटिंग है। तो मैं कैबिनेट का सीटिंग में मैं जितने भी हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, DCM, आप सभी को मैं आपसू की ओर से तहे दिल से मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन आपको सबमिट किया उसको चर्चा कीजिए। और आज हम लोग आप लोग का खिलाफ नहीं, वी आर स्टैंडिंग हियर, आज हम लोग जो बार बार बोल रहा है वो आपका खिलाफ नहीं, हम ये हमारा लोग के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी हम यहाँ बोला ये सारा जो रिलेटेड है, ये हमारा पब्लिक का रिलेटेड है। हम लोग का मेन टारगेट है कि कम्युनिटी स्प्रिट नहीं होना है। तो इसलिए हम विश्वास करता है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, हम विश्वास करता है कि आप लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेगा और आज शाम जब कैबिनेट का नोट आएगा हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एडिशन टू दैट मेरे जो GS के स्टेटमेंट को हम सपोर्टिंग करते हुए मैं रिगार्डिंग द SSA वाला को भी हम बोलना चाहेगा। कैबिनेट मिनिस्टर लोग, आप लोग देखिए यहाँ पे अरुणाचल में हमारा जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो आज का दुनिया में आज का तारीख पे कौन सा हालत है। तो एजुकेशन, कल को कोई ऐसे टीचर को रिक्रूट कर देगा, कोई ऐसे टीचर को रिक्रूट कर देगा, आपका वहाँ पंचायत का इन्वॉल्वमेंट से ऐसे टीचर रिक्रूट करेगा, कल को हजारों लाखों लोग का स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होगा। इसलिए मैं, अगर आप जो पावर डिवोल्यूशन बोलता है, पंचायत पावर डिवोल्यूशन जो सेक्रेटरी मैडम कह रहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पावर डिवोल्यूशन करना है तो पंचायत का लीडर को आप स्कीम में कीजिए, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कीजिए, एजुकेशन सेक्टर में, टीचर रिक्रूटमेंट में इसको बिल्कुल मत कीजिए। इसको आप सो स्ट्रांगली अपोज दिस मूव। उसके बाद में